بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां, दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब, बहुत ही बुलंद और बाला जो मुक्लिन का अमल है। इसको, इन मुकलों को बराइना भी कहते हैं और खुदबीनी भी कहते हैं। बराइना और खुदबीनी भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, बराइना का मतलब होता है आईने के ऊपर मुकलों की हाजिरी। ठीक है, आईने के ऊपर यानी शीशे के ऊपर मुकलात की हाजिरी। तो आपने सबसे पहले आपने जो स्क्रीन के ऊपर जो आयात, ये जो अज़ाइम चल रही है, ठीक है, ये आपने शीशे की पुश्त के ऊपर लिख कर चिपका लेनी है। ठीक है, गौर से सुन ली। जो स्क्रीन के ऊपर अज़ाइम चल रही है, ठीक है, एक अज़ाइम आप पढ़ेंगे और एक शीशे के ऊपर चिपकाएंगे। ठीक है, और अज़ाइमत को बापरहेज पहले 9 चंदी जुमेरात को, जब सूरज बुर्ज साबित में हो, यानी 5वें या 8वें या 11वें बुर्ज में हो, तो तब आपने ये अमल करना है। और 4418 मरतबा आप रोजाना के हिसाब से 41 दिन तक ये अमल करेंगे। तो आप इसके जब आमिल बन जाएंगे, ये एक ऐसा नया अमल है कि बस आपको ये इस अमल की ही बस आमिल बनने के लिए जरूरत है कि आपको इस अमल को आप अगर मुकम्मल परहेज और मुकम्मल तरीके से करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप इस अमल का ही इतना फैज है कि आप मुकम्मल आमिल बन जाते हो। तो आपने क्या करना है, रोजाना आपने 109 बार बकायदा पढ़ें ताकि अमल आपके कब्जे में रहे। जब आप ज़कात अदा कर लेंगे ना, तो इस आयत को रोजाना 109 मरतबा भी आप पढ़ेंगे ताकि जो मुकलीन है आपके कब्जे में रहे। फिर जब आपने मुकलों की हाजिरी खुद देखना हो, तो या आपने अपने किसी दोस्त को दिखाना हो, या किसी, ये इतने नायाब मुकल है, तो जिसके ऊपर भी आप आमिल हो ना, जिसके ऊपर भी आप उनकी हाजिरी करवाओगे, वो फौरन उनके ऊपर भी हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, बिहक्के हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व बिहक्के या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहु समद। ये बस इतनी सी अज़ाइमत है जो आपने रोजाना पढ़नी है 4418 मरतबा। ठीक है, और फिर आपने बाद में जब आप इसके आमिल बन जाए तो 109 मरतबा जैसे ही आप पढ़कर शीशे पर दम करेंगे, या अपने किसी दोस्त अहबाब पर या अजीज़ो क़रीब में से या किसी बच्चे पर भी दम करेंगे, फौरन ही हज़रात मुक्लिन का नज़ूल होगा और जो भी आप उनसे सवाल जवाब करेंगे वो फौरन ही आपको सही खबर देंगे। अगर आपने ये, अगर खुद आपने अगर इस अमल की जब आप मोकल बन जाएंगे, अगर आप खुद देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने शीशे के ऊपर पढ़ाई करनी है, लेकिन शीशे के पीछे जो अज़ाइमत आपको बताई गई है वो लाज़मन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप जो ज़कात के अल्फाज होंगे वो आप 109 मरतबा पढ़कर जैसे दम करेंगे, फौरन मुकलीन हाजिर हो जाएंगे शीशे के ऊपर। ठीक है, शीशे के ऊपर आपने क्या करना है, उनके ऊपर एक दायरा बना लीजिएगा, उसके अंदर स्याही भर लीजिएगा। उस दायरे के अंदर जो मैंने मुकलीन की स्याही बताई है वो उसके अंदर भर लीजिएगा, तो वहां पर मुकल आपको नजर आएंगे। ठीक है, बहुत नायाब अमल है। एक अज़ाइम जो है आपने पढ़नी है, और दूसरी अज़ाइम असमतु अक़समतु अलैकुम, या तो यहाँ से लेकर आपने आखिर तक जो अज़ाइम है वो लिखकर शीशे के पीछे आपने चिपकानी है। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शीशे के पीछे आप इसको लिखकर किसी कागज से चिपका देंगे, मतलब कि जैसे आप कागज पर लिखेंगे
تو کاغذ والی سائڈ جس کے اوپر عزائمت لکھی ہے وہ شیشے کے اوپر آپ چپکا دیں گے بیک سائڈ پہ، اور خود شیشے کے فرنٹ پر جب آپ نے حاضرات کروانی ہوگی گول دائرہ بنائیں گے، اس کے اندر وہ دائرے کے اندر سیاہی یا کاجل بھر دیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے جادوئی کاجل، تو وہ بھر دیجئے گا، تو اس میں جو ہے موکلین کی حاضری ہو جائے گی۔ ساتھ میں اگربتیوں کا ضرور استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی آپ پڑھ کر پھونک ماریں گے تو آپ کو ایک دم سے ایسے جھٹکا لگے گا اور حجاب کے پردے آپ کے گر جائیں گے، فوراً ہی آپ کو موکلین نظر آنے لگ جائیں گے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر عمل پسند آتے ہیں تو کم از کم آپ بتایا کریں تاکہ میں اچھے اور بہترین عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں، پوسٹ کیا کروں۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، آپ لازماً کیجئے گا، بہت اعلیٰ۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی